तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षय स्वानं च अनन्यभावानां अनुध्यानाय च सकृत् तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षय स्वानं च अनन्यभावानां अनुध्यानाय च सकृत् किमिदं सुकृतो वेति किमिदं सुकृतो वेति देव देव न वेद्म्यहम् देव देव न वेद्म्यहम् सर्वतोमुखमायाति तेजः परं दारुणम् किमिदं सुकृतो वेति देव देव न वेद्म्यहम् सर्वतोमुखमायाति तेजः परं दारुणम् तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षय स्वानं च अनन्यभावानां अनुध्यानाय च सकृत् किमिदं सुकृतो वेति देव देव न वेद्म्यहम् सर्वतोमुखमायाति तेजः परं दारुणम् तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षय स्वानां च अनन्यभावानां अनुध्यानाय च सकृत् तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया स्वनां चानन्यभावानां अनुध्यानाय च सकृत् तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया स्वानं चानन्यभावानां अनुध्यानाय च सकृत् तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया स्वानं चानन्यभावानां अनुध्यानाय च सकृत् किमिदं सुकृतो वेति देव देव न वेद्म्यहम् सर्वतोमुखमायाति तेजः परं दारुणम् तथा ayam this cha and avatar incarnation te yours bhuvaha of the material world how
Bhar, भार burden. burden. Jihirshaya, Jihirshaya, for removing. Swana, Swana, friends. friends. Cha ananya bhavana, Bhavana, end of the exclusive devotees. Anudhyanaya, for remembering repeatedly. Chasakrit, and fully satisfied. and fully satisfied. Thus you descend as an incarnation to remove the burden of the world and to benefit your friends, especially those who are your exclusive devotees and are wrapped in meditation upon you. Please repeat after me. Thus you descend as an incarnation As an to incarnation, remove the burden of the world burden of the world, and to benefit your friends, and to benefit your friends, especially those who are your exclusive devotees especially those who are your exclusive devotees and are wrapped in meditation upon you. and are wrapped in meditation upon you. It appears that the Lord is partial to his devotees. Everyone is related with the Lord. He is equal to everyone, and yet he is more inclined to his own men and devotees. The Lord is everyone's father. No one can be his father, and yet no one can be his son. His devotees are his kinsmen, and his devotees are his relations. This is his transcendental pastime. It has nothing to do with mundane idea or relation, fatherhood, or anything like that. As mentioned above, the Lord is above the modes of material nature, and thus there is nothing mundane about his kinsmen in relation to devotional service. Kim, what is? Idam, this. Sweet, does it come? Kutaha, where from? Va iti, be either. Dev, O Lord of Lords. Na, not. Vedmi, do I know? Aham, I. Sarvataha, all around. Mukham, direction. Ayati, coming from. Tejaha, effulgence. Param, very much. Darunam, dangerous. O Lord of Lords, how is it that this dangerous effulgence is spreading all around? Where does it come from? I do not understand it. Repeat after me. O Lord of Lords, how is it that this dangerous effulgence is spreading all around? Where does it come from? I do not understand it. Anything that is presented before the personality of Godhead should be so done after due presentation of respectful prayers. That is the standard procedure. And Sri Arjuna, Prabhupada says Sri Arjuna, respectfully, Sri Arjuna. Although an intimate friend of the Lord is observing the method of general information. Sri Prabhupada ki jai. Om Jnana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. श्रीमद् भागवत महापुराण की बहुत सुंदर स्तुति है जो अर्जुन के द्वारा की गई।
थोड़ी सी स्तुति है, इसमें बहुत सारे श्लोक नहीं है, केवल 5 श्लोक थे और बहुत टाइम भी नहीं है क्योंकि ब्रह्मास्त्र आ रहा है, बहुत टाइम भी नहीं है। तो बहुत सुंदर 5 श्लोकों में उन्होंने स्तुति की है। और ये स्तुति करने की विधि होती है कि पहले प्रणाम किया जाए, जिसकी हम स्तुति कर रहे हैं उसको ग्लोरिफिकेशन किया जाए, उसका ग्लोरिफिकेशन किया जाए। तो बहुत अच्छे से उन्होंने प्रणाम करते हुए भगवान का ग्लोरिफिकेशन किया। इस स्तुति को एक बार पूरे हो रहे हैं हमारे पीछे के। अर्जुन वाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संस्कृतेः त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतेः परः मायां विदुषिच्छक्त्या कैवल्ये स्थितात्मनि स एव जीवलोकस्य मायामोहितचेतसः विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणं तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया स्वानां चानन्यभावानां अनुध्यानाय चास्ति किमिदं सुकृतो वेति देवदेव न वेद्महि सर्वतोमुखमायाति तेजः परमदारुणम्। बहुत सुंदर स्तुति है, जिस स्तुति के अंत में अर्जुन ऐसा कहते हैं कि किम इदम सुत कुतो वेति, यह क्या है, व्हाट इज दिस, और ये कहाँ से आ रहा है। इतना प्रकाश, इतना एफल्जेंस, करोड़ों सूर्यों के समान, तो मैं इसे समझ नहीं पा रहा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि परम दारुणम है, ये समस्त जीवों को कष्ट देने वाला है। और क्योंकि वसुधैव कुटुम्बकम इस सिद्धांत से अर्जुन सबको अपना मानते हैं, इसलिए सारे जीवों को बचाने के लिए वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पहले तो मुझे ये बताइए ये है क्या, क्योंकि मैं ये समझने में असमर्थ हूँ। तो भगवान ज़्यादा देर नहीं लगाए, भगवान ने तुरंत बताना शुरू किया, क्योंकि तेजी से आ रहा था ब्रह्मास्त्र। तो तुरंत भगवान ने बताना शुरू कर दिया कि क्या करना है और ये क्या है। तो इसके पहले के श्लोक में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि किस प्रकार से भगवान अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। भगवान पक्ष लेते हैं अपने भक्तों का निश्चित रूप से। प्रभुपाद जी पॉपट में कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। तो ये भक्तों के लिए, जब भक्त ये बात सुनते हैं कि भगवान भक्तों का पक्ष लेते हैं, तो उनके हृदय में एक आशा जागृत होती है कि भगवान हमें निकाल लेंगे, भगवान हमें गिरने नहीं देंगे। और इस श्लोक को भगवद गीता के कुछ श्लोकों के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट किया जा सकता है। तो आप लोग बताइए कौन से वो श्लोक हैं जिसके साथ इस श्लोक को कनेक्ट किया जा सकता है। 1866। हाँ जी बोलिए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहुत अच्छा कि अगर हम अपने सारे धर्मों को त्याग कर दूसरे सारे धर्मों को त्याग कर, बहुत सारे धर्म होते हैं अलग अलग, माता पिता का एक ऋण होता है, ऋषियों का ऋण होता है, देवताओं का एक ऋण होता है, अन्य जीवों का एक ऋण होता है, तो उसको चुकाना भी एक धर्म है। इसके अलावा भी बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन
जो भगवान की शरण में डायरेक्ट आ जाता है उसको अलग अलग दूसरे धर्मों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एकमात्र धर्म क्या है? भगवान का भजन करना और युग के द्वारा बताई गई ड्यूटी को पूरा करना। और किस श्लोक के साथ कनेक्ट किया जा सकता है? कौन बताएं? अच्छे से इसका ट्रांसलेशन पढ़िए तो आपको याद आ जाएगा इसको। बहुत अच्छा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापनार्थाय भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए बारंबार आते हैं। जब जरूरत पड़ती है भगवान आ जाते हैं। भगवान इंतज़ार नहीं करते हैं, वेट नहीं करते हैं कि मैं किसी और को भेजूं, किसी और के द्वारा करवा दूं। भगवान का इतना प्रेम है कि भगवान स्वयं आ जाते हैं। जैसे जब गजेंद्र ने पुकारा भगवान को तो भगवान गरुड़ पे चढ़ के खुद आ गए। किसी दूसरे को भेज सकते थे लेकिन भगवान स्वयं आए गरुड़ पे चढ़ के। और ऐसा लिखा गया है कि भगवान को गरुड़ की स्पीड स्लो लगी। गरुड़ कितनी तेजी से चलते हैं? मन की गति से। हम लोग यहाँ बैठे हैं और वृंदावन के बारे में कुछ सोचेंगे, अगर वहाँ गए हैं तो तुरंत वो दृश्य सामने आ जाएगा। मन की गति। प्लेन से जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, है ना, 18 घंटे लगेंगे, 22 घंटे लगेंगे, लेकिन मन की गति से जाएंगे तो सोचा और वहाँ पहुँच गए। तो मन की गति से भी ज़्यादा तेज कौन चलता है? गरुड़ जी। लेकिन वो गति भगवान को स्लो लगी तो भगवान गरुड़ से कूद गए रक्षा करने के लिए गजेंद्र की। भगवान ने उन दोनों का उद्धार किया। तो इस प्रकार से भगवान रक्षा करते हैं। एक बार की बात है कि अकबर ने बीरबल से कहा कि क्या जरूरत है भगवान को आने की? हमारे हिंदू धर्म में सब कहते हैं कि भगवान आते हैं, भगवान अवतार लेते हैं, क्या जरूरत है भगवान को आने की? अगर वो सर्वशक्तिमान हैं तो वो अपने धाम में बैठकर मार सकते हैं, तो बुरे लोग उनका वध कर सकते हैं, उनको आने की क्या आवश्यकता है? तो बीरबल कहते हैं बताएंगे आपको, टाइम आएगा तो बताएंगे महाराज जी, तब बाद में देंगे। तो इसके बाद एक बार जल बिहार के लिए एक नौका में बैठकर बीरबल जा रहे थे और उनके साथ अकबर भी बैठे हुए थे और उनका एक पुत्र बैठा हुआ था, बीरबल का एक पुत्र बैठा हुआ था। तो जब बीच में पहुंच गए नदी के तो बीरबल ने उसके पुत्र को उठाया और नदी में फेंक दिया। तो जैसे ही नदी में फेंका, उस नौका में और भी सैनिक थे राजा के, लेकिन राजा तुरंत छलांग लगा दिया और उसको बचा के लेके आया। तो जब राजा ने देखा ये तो पुतला था, तो डॉल थी, केवल उसके बच्चे के जैसी आकृति की डॉल बनाई गई थी। तो अकबर कहते हैं क्या मजाक है, मेरे साथ मजाक करते हैं? तो बीरबल ने कहा आपने पूछा था महाराज कि भगवान क्यों आते हैं इस संसार में, वो तो किसी के द्वारा करा सकते हैं अपने भक्तों की रक्षा। तो यहाँ आपके इतने सारे सैनिक खड़े थे, आपका बच्चा जल में डूबा, तो आपने उनको आज्ञा क्यों नहीं दी? आप क्यों खुद छलांग लगा दिए? क्यों खुद आप कूद गए इस जल में? तो अरे मेरा बच्चा है, मेरा ब्लड है, मेरा ब्लड है। तो जिसको हम अपना समझते हैं उसको बचाने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, हम किसी दूसरे की राह नहीं देखते हैं। कोई बच्चा यदि स्विमिंग पूल में गिर जाए, उसकी माता किनारे है, तो किसी से बोलेगी नहीं। माता से तैरना आता हो या ना आता हो, माता तुरंत कूद जाएगी, क्योंकि उसका प्रेम है बच्चे से बचाने। उसे तैरना नहीं आता लेकिन फिर भी कूद जाएगी बचाने के लिए। तो इस तरह से भगवान है, वो तो तैरना जानते हैं, सब जानते हैं, तो वो आ जाते हैं इस संसार में, इस धराधाम में। यद्यपि ये संसार रहने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान आ जाते हैं। लेकिन भगवान की जो माया शक्ति है वो भगवान को प्रभावित नहीं करती, इसको हम सुन सकते हैं। तो यहाँ पर स्वानाम, इस शब्द स्वानाम का अर्थ होता है अपने जन।
अपने जन, लेकिन प्रभुपाद जी का ट्रांसलेशन करते हैं फ्रेंड्स। तो बहुत अच्छा रिलेशन है जो हम भगवान के साथ बना सकते हैं। तो जब जब उनके फ्रेंड्स को उनकी ज़रूरत पड़ी, भगवान आए। अर्जुन तो उनके बहुत बड़े मित्र हैं, बहुत बड़े उनके फ्रेंड हैं अर्जुन। तो अर्जुन के लिए भगवान हमेशा तैयार रहते थे। बहुत प्रेम करते हैं भगवान अर्जुन से। क्यों? भक्तों से में सखा चेती। केवल सखा ये काफ़ी नहीं है, लेकिन यहाँ पर भक्तों से में सखा चेती। सखा तो हैं, लेकिन सखा के साथ साथ भक्त भी हैं, बहुत बड़े भक्त भी हैं। तो हम जब कोई रिलेशन भगवान के साथ बनाते हैं, है ना, प्रियतम का रिलेशन या फ्रेंड का रिलेशन या पुत्र का रिलेशन, तो हमारा रिलेशन भक्ति में होता है। हमारे हृदय में भक्ति, पहले तो भक्ति होती है, इसीलिए सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं विस्मृत्यते। सेवा के द्वारा, जब भक्ति के साथ हम सेवा करते हैं तो हमारा स्वरूप जागृत होता है कि भगवान के साथ हमारा क्या स्वरूप है। और जब ऐसा स्वरूप जागृत हो जाता है तो भगवान हमारे हो जाते हैं, भगवान बंदी हो जाते हैं। भगवान ऐसा कहते हैं पुराणों में कि ये में भक्त जना पार्था नाम भक्ता सते जना मद भक्ता नाम अपि चामे भक्ता ते में भक्त तमा। आदि पुराण में कि जो मेरे भक्तों का भक्त है वास्तव में वो मेरा भक्त है। इसके बाद कहते हैं अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्तों के पराधीन हूँ। दुर्वासा मुनि के पीछे चक्र दौड़ा था मारने के लिए भगवान को। क्यों? अहम भक्त पराधीन। भगवान ने चक्र को आदेश देकर रखा है पहले से, यदि कोई मेरे भक्तों को परेशान करता है तो उसको खत्म कर दो, पहले से आदेश देकर रखा है। अहम भक्त पराधीन। यद्यपि ऋषियों से भगवान बहुत प्रेम करते हैं, साधुओं से भगवान बहुत प्रेम करते हैं, ब्राह्मणों से तो भगवान बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी ब्राह्मण के पीछे चक्र दौड़ा। क्यों? अहम भक्त पराधीन। ही स्वतंत्र इव ध्वजा। हे द्विज, ये मत सोचो कि मैं स्वतंत्र हूँ। दुर्वासा मुनि से कहते हैं मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं अपने भक्तों का सर्वेंट हूँ, नौकर हूँ। और भक्तिर भक्त जनप्रिया, जो भक्तों की भक्ति करता है वो तो मैं उसके हाथों बिका हूँ, है ना। इसलिए हम लोग भक्तों की शरण लेते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं। भक्त जो आज्ञा देते हैं हम उसका पालन करते हैं। कभी कभी वो हमारी इच्छा अनुसार ठीक नहीं होता है, हम कुछ और चाहते हैं, भक्त कुछ और चाहते हैं, लेकिन जैसी वो आज्ञा देते हैं यदि हम उसका पालन करते हैं तो हम भगवान के प्रिय हो जाते हैं, भगवान हमारे हाथों बिक जाते हैं। तो जब जब भगवान के मित्रों को आवश्यकता पड़ी भगवान आए। एक बहुत अच्छे भक्त थे केवट, उसने भगवान के पैर धोए। उसके पहले एक और भक्त थे, वो भगवान के मित्र बने, निषाद राज। जिनका कोई खाना नहीं खाना चाहता है, जिनको कोई छूना नहीं चाहता है, वो जब प्रेम से फल इत्यादि लेकर आए तो भगवान ने उसे ग्रहण किया, उनकी सेवा को ग्रहण किया। तो स्कंद पुराण में ऐसा कहा गया है कि निषाद राज पहले एक लकड़हारा था। उन्होंने भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा की थी लंबे समय तक, हर पूर्णिमा और संक्रांति को, इसलिए अगले जन्म में वो निषाद राज बने, भगवान के मित्र बने। और भगवान का मित्र कौन बना? सुग्रीव भगवान के मित्र बने, यद्यपि वो किम पुरुष वर्ष में जन्म लिए थे। सुग्रीव किसी को देख के यदि हम बोले कि नर, क्या ये नर है? कौन है? ये वानर है कि नर है? समझ में नहीं आता था। तो ये शरीर जो था पूरा वो नर का था, लेकिन जो चेहरा था वो वानर का था और एक पूंछ निकली, बस इतना ही। किन्नर, क्या ये नर है? किम पुरुष वर्ष में जन्म लिए हैं, किम पुरुष, क्या ये पुरुष? जिनको देखकर आश्चर्य होता है। सुग्रीव उनके भगवान मित्र बने और बाली का वध करके उनकी पत्नी को वापस करवाए। और उसके बाद सुग्रीव भूल गए। 3 महीने चतुर्मास चल रहा था तो भूल ही गए वो। चतुर्मास खत्म भी हो गया लेकिन भूल गए कि मैं उनकी भी हेल्प कर पाए। तो लक्ष्मण जी गए, लक्ष्मण जी
भगवान को अच्छी तरह से जानते हैं, धर्म को जानते हैं, तो धर्म सिखाने के लिए गए, गुरु धर्म सिखाने के लिए गए सुग्रीव जी को। इसके बाद भगवान विभीषण के मित्र बने और विभीषण को उसका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाया, राज्य दिलाया जिसके वो अधिकारी थे। विभीषण ही अधिकारी थे क्योंकि धर्म को जानते थे। तो जब विभीषण आ रहे थे तो सारे वानरों ने कहा कि न जाने ये क्यों आ रहे हैं, ये राक्षस राज रावण के भाई हैं, हो सकता है कि ये कोई षड्यंत्र है, इनको ना आने के आप कहें तो इनको वहीं मार देते हैं। लेकिन भगवान ने कहा बिना जाने कि वो क्यों आ रहे हैं मारना ठीक नहीं है। और यदि वो मेरी शरण में आ रहे हैं तो एक श्लोक है वाल्मीकि रामायण में, भगवान ने प्रतिज्ञा की उस श्लोक में कि यदि कोई मेरी शरण में आता है और एक बार यदि कोई ऐसा बोल देता है भगवान के सामने जाकर, केवल एक बार कि भगवान मैं आपका हूँ, एक बार बोलता है केवल कि हे भगवान मैं आपका हूँ, भक्ति के साथ अपना सब कुछ त्याग के यदि कोई बोल दे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, कि मैं आपका हूँ, तो भगवान निश्चित रूप से उसकी रक्षा करते हैं, अपनी शरण देते हैं। और भगवान उसको हमेशा के लिए, केवल ये नहीं उस समय जब वो आया है तब नहीं, हमेशा के लिए भगवान उसको प्रोटेक्शन देते हैं। ऐसा श्लोक में वाल्मीकि। सुदामा भगवान उसके सखा थे, है ना, और अर्जुन के तो सखा थे ही। जब अर्जुन मिलने के लिए आते थे भगवान से द्वारिका में, तो कुछ दिन वहीं रह जाते थे, 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने वहीं रह जाते थे, द्वारिका में रह जाते थे। और कृष्ण भगवान जब वो जाने लगते थे तो अर्जुन को छोड़ने के लिए आते थे। कहाँ? हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ छोड़ने के लिए जाते थे। तो छोड़ने के लिए जाते थे तो भगवान को इतना प्रेम है कि छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो 3-4 महीने वहीं रह जाते थे। और जब भगवान आने लगते थे तो अर्जुन उनको छोड़ने के लिए आते थे और 3-4 महीने यहाँ रह जाते थे। तो ये चलता रहता था, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। तो ऐसा होना चाहिए कि हम भगवान के बिना ना रह सकें। यदि हम बाहर भी जाएं तो वो याद हमारे हृदय में रहे कि अरे कुछ कमी है यहाँ, हमें तुरंत कब फिर भगवान के निकट जाना है, कब हमें मंदिर जाना है। तो आप लोग तो सभी बहुत अच्छे भक्त हैं, हमेशा मंदिर आते हैं, मंगल आरती अटेंड करते हैं, ये भक्तों की पहचान है। जो मंगल आरती अटेंड करता है और प्रोग्राम करता है, मॉर्निंग प्रोग्राम करता है, जप इत्यादि करता है, तो यही भक्तों की पहचान है। भक्तों को कैसे पहचाने? यही पहचान, क्योंकि राक्षस सुबह नहीं उठ सकते हैं, उनके लिए ये बहुत मुश्किल है। लेकिन जो सुबह उठता है वही भक्त है। प्रभु जी भी सुबह उठ जाते हैं, 3 बजे उठ जाते हैं और उठ के मृदंग बजाते हैं। अभी मंदिर पैर में दर्द है इसलिए नहीं आ पाते हैं, लेकिन हमेशा हम देखते हैं एवरी डे ऑकलैंड में 3 बजे से उठ के मृदंग बजाते हैं, जप इत्यादि करते हैं। तो जब हनुमान जी गए थे लंका में तो सब तो सो रहे थे, लेकिन सुबह सुबह विभीषण जी जाग गए 4 बजे और राम 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 ऐसा जप रहे थे। जब हनुमान जी ने सुना कि राम राम कोई जप रहा है तो उनको लगा ये रावण की कोई माया तो नहीं है, लंकापुरी में कौन राम राम जपेगा? राक्षसों की नगरी में जहाँ चारों तरफ भयंकर राक्षस हैं, वहाँ कौन राम राम जप रहा है सुबह? तो फिर लेकिन उसके बाद नए नए तुलसी के वृक्ष देखे और जब राम राम सुना, विशेष करके सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तब हनुमान जी जान गए कि ये भगवान के भक्त हैं, क्योंकि सुबह उठना वो राक्षसों के बस की बात नहीं है। तो राम राम कहीं सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन जी। वो पहचान गए कि ये सज्जन है, इनसे अपने मन की बात बोलने में मुझे कोई हानि नहीं है। तो जाके पूछते हैं सीता जी का पता लगाइए कि सीता जी कहाँ है। तो दोनों के बीच में फिर बहुत अच्छी वार्ताएं हुई, दोनों मिले, साधु मिले। तो जब जब भक्तों के ऊपर कष्ट आता है तब तक भगवान जन्म लेते हैं, तब तक भगवान आते हैं, भक्तों का हित करने के लिए आते हैं, अपने लोगों का हित करने के लिए आते हैं।
तो यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि भगवान का क्या रिलेशन है, तो भगवान ऐसा समझते हैं कि मेरे जैसे ब्लड का रिलेशन है भक्तों के साथ। जैसे कूद गए थे अकबर अपने बच्चे को बचाने के लिए, तो वैसे ही भगवान इस धराधाम में आके हम सबको बचाते हैं, हम सबको उबारते हैं। तो कभी कभी भक्ति जीवन में हम लोगों से अपराध होता है, बहुत सारे अपराध होते हैं या नामा अपराध होता है। कभी कभी हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग योग्य नहीं हैं, कैसे हमें मुक्ति मिलेगी, कैसे हम भगवान के धाम जाएंगे, कोई ना कोई गलती हम लोगों से हो जाती है। तो एक और श्लोक में ऐसा लिखा गया है, नाति प्रसीदति, कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न रहते हैं, और यदि भक्तों से कोई गलती हो जाए, कोई अपराध हो जाए, तो भी भगवान बुरा नहीं मानते हैं। उस श्लोक में ऐसा लिखा है। जब हम लोग 10 नामा अपराध को पढ़ते हैं तो हम लोग डर जाते हैं कि ये तो होते ही रहते हैं हम लोग, है ना। तो कुछ ऐसी बातें भी भक्तों को बताना चाहिए, कुछ ऐसे श्लोक भी जानना चाहिए कि जिससे कि भक्तों के हृदय में आशा जागृत हो। यदि आशा नहीं रहेगी तो हम कैसे कृष्ण की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जब इन सब कथाओं को पढ़ते हैं, इन सब श्लोकों को पढ़ते हैं, जैसे आज श्री प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं, तो ये आशा जागृत करने वाला है। तो यदि कोई अपराध भी हो जाए भक्त से, और पूर्ण समर्पण करके पुनः वो भक्त आए कि भगवान हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई है ना, तो भगवान माफ कर देते हैं। कभी कभी कोई अपराध जान के होता है तो हम लोग उस भक्त के पास जाके माफ़ी मांग लेते हैं, तो भक्त बहुत कृपालु है। कितना भी बड़ा अपराध हो जाए, एक बार कोई बोल दे वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, वैष्णव तुरंत खुश हो जाते हैं, केवल प्रणाम करने से खुश हो जाते हैं। और भगवान भी ऐसे हैं। कभी कभी पता नहीं चलता है कि अपराध हुआ कहाँ, पहले जो रस आ रहा था चैंटिंग में वो कहाँ गायब हो गया। तो वो जब रस गायब हो जाए मतलब कुछ तो गड़बड़ हो गया, तब ठीक है भगवान के पास जाएं, भगवान के पास जाके क्षमा मांगें, तो भगवान माफ़ कर देंगे। यदि किसी भक्त के चरणों में अपराध हो गया है और वो ना माफ़ करे, तब क्या करें बताइए। तब तो भगवान भी ना माफ़ करेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। तो शास्त्र कहता है ऐसी स्थिति में उस भक्त के पीछे पीछे चलें, और जहाँ जहाँ उसके रजकण हैं, जहाँ जहाँ वो पैर रखता है, तो वो कण उठा के अपने सिर में डालें। तो इससे भी वैष्णव अपराध क्षमा हो जाते हैं, इससे भी वैष्णव अपराध नष्ट हो जाते हैं, है ना। तो भक्ति जीवन जैसे बताया था उस दिन की रेजर की धार पे चलने के बराबर है। तो इसलिए हमें बहुत सतर्कता से, सावधानी से इस जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, अच्छे से नाम जप करते हुए, बड़े भक्तों का सम्मान करते हुए, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, भक्तों की सेवा करते हुए, हम सभी को धीरे धीरे अपराध से बचते हुए और धीरे धीरे भगवान के शरण में पहुंचना है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि कृष्ण उद्धार लें, कृष्ण बचा लें। जब डर लगे एक फूल भगवान के चरण में लाकर रख लीजिए, गजेंद्र की याद कीजिए और गजेंद्र मोक्ष पढ़िए। गजेंद्र मोक्ष पढ़ने से सारे ऋणों से मुक्ति मिल जाती है। जितने भी प्रकार के ऋण हैं इस संसार में, उन सबसे ऋण मुक्त हो जाते हैं गजेंद्र मोक्ष पढ़ने से। और इन श्लोकों का गायन कीजिए निश्चित रूप से। जैसे कुंती महारानी की स्तुति है, गोपियों की स्तुति है, इन सब स्तुतियों का धीरे धीरे गायन कीजिए, इनको याद भी कीजिए और दूसरे भक्तों के साथ शेयर कीजिए, उसके अर्थ बताइए। तो प्रेयर करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। अर्जुन ने केवल 5 श्लोक कहे, 5 श्लोक कहे, भगवान को प्रणाम किया, भगवान का ग्लोरिफिकेशन किया, और ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप उभारिए हमें इस स्थिति से, बचाइए। और भगवान तुरंत पॉइंट पे आ गए। भगवान ने कहा ये बहुत बड़ा अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, और इसको केवल ब्रह्मास्त्र से काटा जा सकता है, तो तुरंत ब्रह्मास्त्र का संधान करो। तो अर्जुन ब्रह्मास्त्र चलाना भी जानते थे और वापस बुलाना भी जानते थे। तो अर्जुन ने भगवान की आज्ञा मान के आचरण करके ब्रह्मास्त्र का संधान किया।
तो इस प्रकार से हमें इस प्रसंग में हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान प्रेयर करने से प्रसन्न हो जाते हैं। प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रार्थना कैसे करें ये भी सीखा। अर्जुन ने कैसे प्रार्थना की? भगवान का ग्लोरिफिकेशन करके, भगवान को प्रणाम करके इस तरह से प्रार्थना की जाती है। यहाँ समाप्त करें। बोलिए श्री श्री राधा गोलोक बिहारी जी की, श्री गौर निताय जी की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, श्री प्रभुपाद की, श्री भागवतम अमल पुराण की, समस्त भक्त वृंद की, गौर